Naviswork, they have given you, मतलब Autodesk have given you some sample file. Revit के लिए भी है, प्लस आपको Naviswork के लिए भी. Where you can find out the sample file, you can see. Here you need to go for an application menu, just like our application menu. Open. इसमें आपको जाना है to the C drive. Wherever you having the C drive, under that you having the program files, Autodesk. Here you can find out Naviswork Manage. Okay, always Naviswork Manage 2021 या आपके पास 19 है तो 19. In that search for sample, SAMPL, PQRS samples. In that samples, you will having some sample drawings by the Naviswork. Okay, so you can read here. Let us have some introduction about first about that Naviswork. Then later we will be come to that. Okay, so whichever the version you are using, that's no issue. तो Naviswork हमेशा जो डाउनलोड करना है आपको, Naviswork Manage 2018. Actually there is three software by the Naviswork. First is Naviswork Freedom, Naviswork Simulate and Naviswork Manage. Okay, हम तीनों में डिफरेंस क्या है? Naviswork Freedom में just like a viewer. Example, जैसे आपको पीडीएफ जो है अपन जब रीड करते हैं, दैट इज अ पीडीएफ व्यूअर. अपन पीडीएफ को जैसे एडोब पीडीएफ रीडर है उसमें अपन एडिट नहीं कर सकते. इजंट दैट? अपन पीडीएफ को एडिट नहीं कर सकते. वैसा ही आपको यहाँ पे नाविसवर्क फ्रीडम में नाविसवर्क फाइल को आप रीड कर सकते हैं, बट आप उससे कुछ भी एडिट या चेंजेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज नाविसवर्क सिमुलेट. इट कैन डू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फंक्शंस एक्सेप्ट द क्लैश डिटेक्शन. बट मुझे नाविसवर्क अपने को एमईपी में नाविसवर्क की जरूरत ही इसलिए है कि क्लैश डिटेक्शन करने के लिए. ओके, तो दैट कैन बी ऑल्सो नॉट यूज. थर्ड इज व्हाट? Naviswork Manage, which having the full power of the Naviswork. So always download the Naviswork Manage. Naviswork Manage जब डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ साथ आपको फ्रीडम भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है. देयर इज नो इशू, यू कैन कीप इट. दैट्स फाइन. Naviswork Manage can do this much of things, but we don't have to learn this. अपना MEP में जो काम है, that we need to learn how to get the clashes and how to manage it. Okay, but to do this we need to have to learn the many of these tools. ये सारे tools पढ़ेंगे तब अपन जाके नाविसवर्क में आप रिव्यू कर सकते हो. तो नाविसवर्क सॉफ्टवेयर इज यूज टू फाइंड आउट द क्लैशेस एंड टू रिव्यू इट. क्लैशेस को रिमूव करने के लिए आपको फिर वापस रेविट में ही आना पड़ेगा. ठीक है, तो नाविसवर्क आपको सिर्फ क्या देगा कि क्लैश रिपोर्ट आपको देगा कि इस जगह पे क्लैशेस है आपको. दैट्स इट. ओके, नाउ सो लेट्स सी how to use these tools, like how to open the Naviswork file directly, how to open the Revit file into the Naviswork. Okay, Naviswork सॉफ्टवेयर सिर्फ Revit की फाइल ही नहीं बल्कि अदर फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं. जैसे आपको AutoCAD की फाइल, इवन योर कैटिया, प्रोई, सॉलिड वर्क, ये सब की भी फाइल आपको उसमें ओपन कर सकते हैं. ओके, सो Naviswork हैव दैट फ्रीडम. तो विल सी द बोथ हाउ टू ओपन डायरेक्टली एंड हाउ टू ओपन द Revit फाइल. जैसे आप कोई भी Naviswork फाइल है, एग्जांपल आई हैविंग दिस सैंपल फाइल, तो ये सारे जो फाइल है वो आपको
नाविसवर्क की, और इसमें नाविसवर्क फाइल में we have missed some important points here. Just 1 minute. 1 minute. Allah. Naviswork having three different types of file formats. Okay, that NWC, NWF, and NWD. So NWC is the catchy file. It is very light file. Okay, and that can be open into any of the Naviswork software. जैसे एग्जांपल, अगर रिविट की फाइल एक मान लीजिए 50 MB की है, तो अगर आपने रिविट की फाइल 50 MB को डायरेक्ट अगर आपने नाविसवर्क में ओपन करा, तो एटलीस्ट इट विल टेक हाफ एन आवर टाइम, 30 मिनट्स टाइम। बट उसी की जगह पे अगर आपने उस 50 mm की रिविट की फाइल को रिविट से ही अगर उसको NWC में कन्वर्ट कर दिए, तो वो जो 50 MB की जो फाइल है, दैट माइट बिकम 1 MB इन NWC। उस 1 MB फाइल को अगर नाविसवर्क में ओपन करेंगे, इट विल नॉट टेक इवन मोर देन 3 seconds। Okay, that is a difference. NWF, it is a proper Naviswork file. Okay, that is a and that NWD, these two file is the same. ठीक है, NWC just is a what as a catchy file. Now here we need to see all these updates. For that, first option is that how to open Naviswork file directly into the Naviswork. ये देखिए Naviswork की NWD file है. You can open the NWF, you can open the NWC, 3D Studio file, ASCII, CATIA, DWF, Autodesk, DWG, DXF file, Inventor file, like a PDF even, ProE, CATIA, ProE, okay, SolidWorks, इन सभी सारे फाइल्स को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे किसे ओपन करना है? ऑल द नाविसवर्क फाइल, द कैन बी सीन। जैसे आपको सैंपल फाइल दी हुई नाविसवर्क ऑटोडेस्क की तरफ से, बस सिटी में मैं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओपन एज हियर सेंट्रल सिटी, ओपन, सी दिस इज अ बिग सिटी still, and how much time it take? Not more than even 2 seconds. Same big file, if it is a Revit file, और इसको अगर ट्राई करेंगे ओपन करना, that same file it will take nearly as a 30 minutes to 1 hour. Okay, that is a benefit. Now अब इसी में अपन देखेंगे ये सारे टूल्स कैसा है। अब ये डायरेक्टली अपन ओपन कर लिए नाविसवर्क की फाइल। अगर मुझे इसकी जगह पे रेविट की फाइल ओपन करना होगा, देन तो एनी टाइप ऑफ एनी रेविट फाइल यू कैन ओपन। तो आई विल जस्ट क्लोज इट first, and I will try to reopen that Naviswork.
Now Navisworks, same. In application menu, open. I'm going to the desktop. Here in the coordination, we having the Revit file, but वो दिख नहीं रहा है. रीजन ये है कि यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है अपने को, Navisworks फाइल. आई वांट हेयर एज ए Revit फाइल. तो ये देखिए कहीं पे Revit होगा. इज एनीवेयर Revit फाइल. या Revit फाइल. तो ऑल द Revit फाइल्स है दिख रही. मैं इसमें आर्किटेक्चर फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ. केजी प्रोजेक्ट ओपन. तो ये कुछ वक्त ले रहा. थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है इसमें. ओके. सो इज Navisworks फाइल. तो इतनी छोटी फाइल को ओपन करने में इसको इतना टाइम लगा. अभी कितने MB की फाइल है? यू कैन चेक इट्स प्रॉपर्टी. ओके. ये ओपन करे अपन, इसकी कैची फाइल क्रिएट हो गई. तो हियर यू कैन सी केजी प्रोजेक्ट, राइट क्लिक, 6 MB की फाइल को. ओके. नाउ so this much time taken to open it. Another option is second. First we have seen how to directly open the Navisworks file in the Navisworks, Revit file to the Navisworks, how to download, you know that. Next is here, we need to export Revit file to the Navisworks. Okay, exporting the what Revit file into the Navisworks. तो इसके लिए मैं Revit file open कर रहा हूँ. Same architecture. This one. I need to export it into the Navisworks file. तो इसके लिए कर रहा हूँ मैं, इसे क्लोज कर दो. अगेन ओपनिंग इट. इसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम टैब नहीं आता, एक ही प्रोजेक्ट रहता है एक साइड में. आई एम गोइंग टू गेट 3D व्यू. इसकी जो बैकअप फाइल है उससे डिलीट कर देता हूँ. लीव इट. सो मुझे इस रिविट की फाइल को आई नीड टू कन्वर्ट इनटू व्हाट Navisworks NWC फाइल. टू ऑप्शन इज देयर. फर्स्ट, रिविट में फर्स्ट बेटर इज गो टू द 3D व्यू. आर एप्लीकेशन मेन्यू, एक्सपोर्ट. हियर यू हैविंग द ऑप्शन NWC. ये NWC तभी एक्टिव होगा अगर आपके पास Navisworks सॉफ्टवेयर होगा आपके सिस्टम में. Okay, you can just hit on the NWC, it will export it. Another option is you can go to here, add in external tools. Here we having Navisworks 2021. तो दोनों में से कहीं पे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जाने के बाद एक्सपोर्ट करने से पहले वी नीड टू मेक अ सम सेटिंग जस्ट फर्स्ट टाइम. जब फर्स्ट टाइम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दैट्स इट. एक बार करेंगे वो आपको लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है. गो टू द Navisworks सेटिंग. In this you need to make some changes if it is required, like a convert element properties, this one, convert link files, and coordinate में check करना अपन को always as a project internal. That's it. These changes you have to make it here under Revit. Then okay. Then you can make export to any of the folder. Like we having our coordination folder here in this place. File as what NWC. Save it.
So your Revit file is converting into NWC as a catchy file. Done? Now, सेम फाइल को मैं Naviswork ओपन कर रहा हूँ. देखिए, Naviswork open. Here is a Revit. That's why it's not coming. Change to the what as a Naviswork. You're having Naviswork file. Select open. कितना टाइम लगा? Isn't? So that is a difference. Next, let me open again that sample file. Open. Where was it? PC, C drive, Autodesk. Sorry. Program file, Autodesk. Another as a Naviswork Manage 2021 samples. Yes, samples. Under that, many files. I go for the Bus City Central. Open. Yeah. Okay, like this one. It's fine. So this way you can have. इसमें देखिए दो ऑप्शन दिए. फर्स्ट आपको क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि अपेंड और मर्ज दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अपने को देखना है. अपेंड एंड मर्ज. लेट्स सी. एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने क्या करा, इस फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ देखिए ऑप्शन दे रही इन द होम टैब, विजिबिलिटी पैनल, हाइड. या शॉर्टकट इसकी क्या दे हुई, Ctrl+H. तो Ctrl+H भी आप प्रेस करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे. मैं यहाँ पे भी इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+H या अदरवाइज हाइड, तो हाइड हो जाते हैं. मैं डोम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+H. डोम के ऊपर वाले पार्ट को Ctrl+H. Ctrl. मतलब कुछ मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे. ओके, तो लेट्स सी. आई एम गोइंग टू हियर ऑप्शन. यहाँ देखिए होम पे अपेंड या मर्ज. फर्स्ट आई टू गो फॉर अपेंड. अपेंड करने जा रहा हूँ. सेम सेंट्रल फाइल सिलेक्ट करा, ओपन किया. देखिए क्या हो गया, हुआ ये, आपकी जो फाइल थी जिस पे आप काम कर रहे थे वो आपका चले गया, और उस फाइल को इसने क्या करा, रिप्लेस कर दिया कंप्लीटली. ओके, उसने क्या करा, आपके फाइल को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया. तो आपकी जो काम की हुई थी वो चले गया, आप खत्म. तो कभी ऐसा होता, जैसे एग्जांपल, आप जो है एक नाविसवर्क फाइल को लेके आप उसमें आप जैसा एग्जांपल लाइक अपन कुछ वर्क कर रहे हैं नाविसवर्क में, रिव्यू कर रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ क्लास डिटेक्शन कर रहे हैं वगैरह. अगर मुझे सपोज कीजिए सेम आर्किटेक्चर फाइल में किसी दूसरे सर्विसेज को भी ऐड करना है, तो अगर मैंने अपेंड करा तो क्या होगा, जो मेरी चेंजेस है वो चली जाएंगी. इजंट? तो उसकी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा फाइल को. ओके, चलिए वन सेकेंड से ये. तो मैं फिर से ओपन करूं डायरेक्टली. ओपन सेंट्रल. नो, क्या आ गए. फिर से वही काम कर रहा हूँ, सबको हाइड कर रहा हूँ. हाइड, हाइड, हाइड. ऐसा कुछ वर्क करे अपन, हाइड कर दिया. बट if I'm now going to, instead of append as a merge, same central city, open. तो क्या हुआ, आपकी जो फाइल है वो वैसा ही है. हाँ, आप जिसको मर्ज कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस है तो वो आपको दिखेगा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर मर्ज एंड अपेंड. नेक्स्ट टूल, in this you having the navigation bar. That is important tools here. Navigation bar. Let's see how to use that navigation bar. Again, I am reopening. That is removing that existing file here. Central file. या अदरवाइज अपेंड कर देते हैं उसको, वो चला जाता. Append. Okay. Now, here we having navigation tool. Here, you see this. This is navigation tool.
इसमें पहला जूम, तो ऑलरेडी वी नो दैट हाउ टू जूम इट। अगर मैं माउस को इस तरह करूँ, स्क्रॉल की को, तो ये जूम होता है आपको, करेक्ट। नेविगेशन टूल्स पे भी सेम, आप जूम पे हिट कीजिए लेफ्ट क्लिक और माउस को फॉरवर्ड बैकवर्ड कीजिए, इट विल बी जूम इन जूम आउट, इजी। अनदर ऑप्शन इज ऑर्बिट। जैसे रिविट में भी अपन अगर ड्राइंग को रोटेट करना है तो क्या करते थे अपन, शिफ्ट और स्क्रॉल को प्रेस करके रोटेट करते थे, दैट इज कॉल्ड एज ए ऑर्बिट। ओके, रिविट में भी जो अपन करते हैं वो भी ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट, अगर सपोज कि आपका माउस वर्क नहीं कर रहा या ड्राइंग आपको इसमें वर्क नहीं कर रही, यू कैन यूज अ नाविस वर्क टूल here. Hit here, bring it, press on the orbit, rotate your mouse, इस तरह, that is orbit. Next is a pan. पैन में जैसे अपन ड्राइंग को मुझे मूव करनी है तो अपन क्या करते थे, जस्ट स्क्रॉल को प्रेस करके ड्राइंग को मूव कराते, देखिए नीचे नाम आ रही पैन। अदरवाइज यू कैन यूज हियर, हिट ऑन द पैन, it will pan here. These tools are only to review, okay, just because in the navis work we'll find out the clashes and we'll review it. तो उस रिव्यू करने के लिए जो टूल्स है वो ये सारे हैं। अपना जो फाइनल टारगेट है बस यही है कि हाउ टू डिटेक्ट द क्लैशेस, तो इसके लिए अपन को ये सारे टूल्स पढ़ना है। नाउ आफ्टर दैट इज अ रिवाइंड, मतलब अभी तक जो भी अपन करें उसको मैं देखना चाह रहा हूँ रिवाइंड करके। तो ये सी हिट ऑन द रिवाइंड, लेफ्ट क्लिक किए रहिए और माउस को पीछे ले जाइए। अपने अभी तक जैसा जैसा माउस घुमाया है या आपने क्या क्या करा वो सब आपको दिखेगा यहाँ पे रिवाइंड में। आगे करेंगे, माउस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे राइट हैंड साइड, इट विल गो फॉरवर्ड, इट्स ओके, दैट इज अ रिवाइंड। नेक्स्ट इज योर सेंटर। जैसे अभी मैं ड्राइंग को रोटेट करना चाह रहा हूँ, ये कहीं तो भी पाइवोट आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये इसके अबाउट यहाँ पे रोटेट है, सेलेक्ट इट, मेक इट हियर सेंटर, हिट ओवर दैट, नाउ दिस बिकम योर सेंटर। अगर आप ऑर्बिट करेंगे, देखिए उसी पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, पाइवोट वहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे पाइवोट। नेक्स्ट इन दैट इट इज एज ए लाइक लुक। लुक में देखिए क्या है, बस लेफ्ट क्लिक कीजिए, जस्ट लाइक अ पैन है आपको, जरा लेफ्ट क्लिक, जस्ट मूव इट अप एंड डाउन। तो इससे क्या होगा, ड्राइंग आपका डाउन जा सकते हैं या अप आ सकता है। लेफ्ट क्लिक पकड़े रहेंगे और डाउन और अप करते रहेंगे ऐसा, फाइन। लास्ट इज व्हाट, वॉक, लाइक वी हैविंग वॉक थ्रू इन आवर रिविट, सिमिलरली हियर वी हैविंग वॉक। कैसा वॉक करना है देखिए, सपोज मुझे यहाँ पे वॉक करना है, चलना है अपने को, एक अपने को व्यू सेट कर लेंगे इस तरह, हीट ऑन द, so let's see how to do the walk here. Just left click over this walk and move your mouse forward. देखिए मूव हो रहा है, तो अगर आप माउस को पीछे खींचेंगे तो ब्रेक लगेगा। ओके, अगर माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस करे हुए अगर आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का तो रोटेट होगा, फॉरवर्ड मूव करेंगे माउस को तो फॉरवर्ड जाएगा ये, अगर पीछे की तरफ माउस को खींचेंगे तो ब्रेक लग जाएगा, राइट फॉरवर्ड। स्पीड ज़्यादा हो गई तो ब्रेक पीछे खींच लीजिए, लेफ्ट, माउस को लेफ्ट लेके जाइए, राइट। मुझे गली में जाने का है तो जस्ट पहले ब्रेक लीजिए, बैक साइड, देन लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ गेम, isn't? However you work, you want to work and this way, पीछे खींच लेंगे ब्रेक लग जाएंगे। ओके, दैट इज अ व्हाट वॉक। दिस वाज अबाउट व्हाट योर नाविस वर्क। अब ये सारे चीज प्रैक्टिस पे है,
प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे टूल्स आप कंट्रोल कर सकते हैं. Next is having here saving the viewpoint. What is that? It is important. Like example, मैंने ये व्यू को देखा, या मेरी व्यू है, मुझे इसको सेव करना है फ्यूचर के लिए. That's fine. You can see here viewpoint tab. Or yeah, in the viewpoint tab, having option here save viewpoint. Hit कीजिए, नीचे टैब बैक साइड में यहाँ पे टैब ओपन होगा. ओके, जस्ट यहाँ पे नेम दे देना है. एज ए मैं नाम दे रहा हूँ V-1, ऑलवेज इन द कैप्शन V-1. दैट्स सेव्ड. अगेन मैं दूसरी व्यू इसको रोटेट कर रहा हूँ, मतलब कैसा भी आप सेट कीजिए व्यू को, जिस व्यू को सेव करना है. अगेन हिट ऑन द सेव व्यू पॉइंट, गिव द नेम एज ए V-2. तो ये इसको क्या बोलेंगे, सेव व्यू पॉइंट ब्राउजर. हिट आउटसाइड. अगेन मैं नॉट दिस साइड ओनली, इवन मैं ये साइड जाके सेव करना चाह रहा हूँ. दिस व्यू आई वांट टू सेव इट. ओके, सेव व्यू पॉइंट, गिव द नेम एज ए V3. वट एवर द नेम यू कैन गिव. मैं इस पॉइंट को सेव करना चाह रहा हूँ, सेव व्यू पॉइंट V4. So like that you can save it multiple number of views. मैं अब इधर से आके इधर सेव करना चाह रहा हूँ इस तरह. ये व्यू मुझे सेव करने का है, सेव व्यू पॉइंट. और इसी व्यू पॉइंट की मदद से अपन वीडियो बना सकते हैं. फिफ्थ, आई वांट टू सी इनसाइड ऑफ इट. सेव व्यू पॉइंट V6. तो लेट मी हैव सम क्रिएट द मोर व्यू पॉइंट, ताकि अपन वीडियो बनाएंगे तो एक like I want to save this view, save viewpoint V7. I want to save this viewpoint, save viewpoint V8. Just एक last और, मुझे ये व्यू पॉइंट सेव करना है V9. ओके, दैट्स ऑल. तो अगर मुझे सपोज कीजिए मुझे व्यू जो वन सेव करा मुझे देखने का है, हिट ऑन द व्यू 1 डायरेक्टली. व्यू 2, इवन आप प्रॉपर नेम दे सकते हैं. ओके, 3, 4, 5, 7, 9, 2, लाइक दैट यू कैन व्यू दैट. और मुझे इसकी मदद से वीडियो बनानी है. अनदर ऑप्शन इज दैट ओनली, creating the viewpoint animation in the Navisworks. Simple. Come to here. मुझे इसकी वीडियो बनानी है, तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सेव व्यू पॉइंट टैब में आके राइट क्लिक कीजिए कहीं पे भी. यहाँ पे अपना ऑप्शन दी हुई ऐड एनिमेशन. यहाँ पे नेम चेंज कर दीजिए, वट एवर नेम. आई लाइक टू गिव द नेम एज ए माई एनिमेशन. इंटर. तो एनिमेशन नेम आ गया. आपको ये सारे व्यू पॉइंट को एनिमेशन में ट्रांसफर करना है. कैसे, फर्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, लास्ट को सिलेक्ट करने से पहले शिफ्ट पे करिए, सभी एक साथ आ गए. इन सभी को ड्रैग करके इस एनिमेशन के पास लाके छोड़ दीजिए, वो सारे माई एनिमेशन के अंदर आ जाते हैं. नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, हिट ऑन द माई एनिमेशन, गो टू हियर. यहाँ देखिए आपको ऑन द व्यू पॉइंट ऑप्शन दी हुई आपको प्ले. जस्ट हिट ऑन इट, सी इट इज मूविंग बाय व्यू पॉइंट. आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू पॉइंट का. अभी व्यू पॉइंट 2 चल रहा. देन 2 खत्म होने के बाद 3 आएगा. आपने कैसा कैसा रोटेट करके वहां तक पहुंचे, लाइक दैट ओनली.
अभी व्यू पॉइंट 6 चल रहा, नाउ इट इज कम टू 7. You can look here which one is highlighted, now it is 8. That's done. Okay, so like this way we can create the animation in this Naviswork. Next tool is enable the sectioning. That is important tools here again. मुझे section enable करके check करना है. So for that what you have to do is go to the viewpoint, sectioning panel, enable sectioning. आगे. Okay, तो section enable करे तो सारे चीज कट गए यहाँ पे. No issue. Just hit on fit selection और move पे hit कीजिए. तो ये देखिए प्लेन आपको नजर आएगा एक. तो अभी जो करंट प्लेन है वो प्लेन 1 है और ये प्लेन जो इस तरफ आपको कटी हुई है. ओके, तो अगर आप यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट करके माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको अंदर की तरफ सेक्शन नजर आएगा इसका. देखिए इसके अंदर क्या है ये आपको देखेंगे. कैन सी द सेक्शन. अगर सेक्शन को मूव कराएंगे इस तरफ तो ये जस्ट एक वर्टिकल प्लेन में मूव होगा, कोई भी सेक्शन कट नहीं होगा, प्लेन आपका अपर मूव होगा. बट इस तरफ मूव करेंगे तो इट विल मूव इनसाइड आउटसाइड लाइक दिस वे. फाइन. नाउ अब सपोज कीजिए मुझे सेक्शन इस तरफ से लेने का है. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, प्लेन 1 जैसा वैसा ही रहने देंगे. मैं ओके और मुझे यहाँ से प्लेन 2 दिखने का है. गो टू हियर, सेलेक्ट द प्लेन 2. प्लेन 2 कुछ तो भी दिख रहा. आप इससे पहले क्या कीजिए, ऑफ कर दीजिए. देखिए ऑन है, प्लेन 2 को ऑफ कर दीजिए. देन हियर कम टू अलाइनमेंट, सेलेक्ट हियर अलाइन टू सरफेस, देन सेलेक्ट दिस सरफेस. आ गई सरफेस, बट सिंस ये जो प्लेन है वो ऑफ किया हुआ इसलिए नहीं दिख रहा. आप इसको ऑन कीजिए, देखिए प्लेन आपको देखेंगे. इस प्लेन 1 पे जाएंगे तो प्लेन 1 इधर है. इसको मूव कराइए, मुझे यहाँ तक देखना है. प्लेन 2 करेंगे तो प्लेन 1 जितना मूव हुआ उतना ही रहता. प्लेन 2 फिर आप जितना चाहे आप उतना मूव कर सकते हैं. मुझे यहाँ तक ही देखना है बस, और मुझे इतना कोई रिव्यू करना है. दैट्स ओके. वेरी यूजफुल टूल फॉर द रिव्यू दिस सेक्शन है. अगर मुझे टॉप से लेना है सेक्शन, अगेन सेम, गो टू द प्लेन 3. पहले प्लेन 3 को ऑफ कर दीजिए. देन अलाइनमेंट या जूम पहले कर लीजिए कहाँ पे आपको मैं इसके अबाउट करना चाह रहा हूँ. अलाइन टू सरफेस, सेलेक्ट इट. अगेन प्लेन 3, हिट ऑन इट. अब इस प्लेन को आप ऊपर नीचे कीजिए. इस तरह. Okay, like this way you can have a section. Yeah, that can be done. Okay, so this is about what you sectioning here. Next tool is here changing the unit of display. ये इसलिए जरूरत पड़ती, जैसे आप रिविट के फाइल को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो रिविट की फाइल की यूनिट और इसकी यूनिट दोनों सेम रहनी चाहिए, तभी जो रिपोर्ट जनरेट होगा वो कंपाइल हो पाएंगे. ओके, तो अगेन अगर इसको सेक्शन को ऑफ करना है जस्ट इनेबल सेक्शन पे हिट कर दीजिए दोबारा, ये चला जाता है, सर्चेज वापस आ जाता है. फॉर चेंजिंग द यूनिट सिंपल, ये बैकग्राउंड में राइट क्लिक कीजिए, ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं ग्लोबल ऑप्शन. अंडर दैट यू गो टू द इंटरफेस, अंडर दैट यू हैविंग द डिस्प्ले यूनिट. अभी जो यूनिट है मीटर में है, मुझे इसको फिट में कन्वर्ट करना है. यू कैन चेंज टू द फिट, डेसिमल फिट, जस्ट फिट. 3 डेसिमल पॉइंट नहीं, मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए. ओके ओके, अब यूनिट क्या हो गई, फिट में आ गई. नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस टूल. इट विल ऑल्सो यूटिलाइज
मेनी टाइम। जैसे मान लीजिए इस पे एक विंडो है, मुझे इस विंडो की साइज मेजर करनी है इस वॉल पे। फॉर दैट रिव्यू, टैब, मेजर। ओके, प्लेन आ गई। प्लेन पे देखिए कि प्लेन आपको पिक करना, ये देखिए पॉइंट पिक कर लिया फर्स्ट एंड दिस पॉइंट। कितना डिस्टेंस है इसका? 3.07 फीट विड्थ है। ओके, इसे निकालना चाह रहे हैं, आप अगर सिर्फ एस्केप करेंगे तो वो नहीं जाएगा, आपको यहाँ पे हिट करना होगा क्लियर, तो चले जाते हैं। अगर मुझे मेजर करना है, पॉइंट पे हिट कीजिए यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट हो जा रहा है। कितना हाइट है इसका? 6.32 फीट। इससे आपको एरिया मिल जाती है ग्लास की कितनी। स्केप करेंगे कुछ नहीं होगा, क्लियर करना होगा, बट स्टिल सेम कमांड एक्टिव है, मेजर हिच। आप कितना भी स्केप करिए नहीं जाता। इसके लिए आपको होम की पे जाके सेलेक्ट पे हिट करना होगा, तब हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू क्लियर कर दीजिए, वो चले जाता है। दैट इज अ मेजरिंग टूल। ओके, एनीथिंग यू कैन मेजर, वर्टिकल, whatever. नेक्स्ट टूल इज सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट में क्या है, what you have to do here in this, अब जैसे मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, इसकी प्रॉपर्टी क्या मुझे नहीं दिख रही कहीं पे भी। तो फॉर टू एक्सेस द टैब, जब कभी भी फर्स्ट टाइम आप नाविस्वक ओपन करेंगे, आप सिंपल से पहले जाएंगे व्यू में। व्यू में देखिए ऑप्शन दे रही लोड वर्क स्पेस। इसमें देखिए दिख रहा है नाविस्वक स्टैंडर्ड सेलेक्टेड, तो नाविस्वक क्लोज होके फिर से रीओपन हो जाता है वो। ओपन हो गया। अब देखिए साइड में यहाँ पे क्लास डिटेक्शन टैब है, सिलेक्शन ट्रीज है, मेजरिंग टूल्स है, प्रॉपर्टीज पैनल है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज पैनल में देखिए बताता ये क्या है, आप इसकी लेंथ को ड्रैग करके बाहर ला सकते हैं। इट इज व्हाट सम वॉल। इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपन को दिख रहा है कॉलम है, बट फिर भी एक बार वेरीफाई करना चाहिए है क्या ये। सिलेक्ट हुआ, प्रॉपर्टीज, ये क्या देखें, पॉलीगॉन मेश, सम मेश टाइप ज्योमेट्री है, ये सिलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टीज, फिर सेट सम रूफ। ओके, तो दिस वे यू कैन टेक इट इफ यू सेलेक्ट दिस। सेलेक्ट हुआ प्रॉपर्टीज में देखिए क्या हुआ, समथिंग लाइट कलर ज्योमेट्री फेस सेट। तो वैसा ही अगर कोई एचवीएसी एलिमेंट है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे तो बताता वो है क्या। नेक्स्ट टूल इज एडिंग लिंक। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल लाइक टू ओपन इट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एचवीएसी के फाइल को नाविसवर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अभी कभी ऐसा होता कि आप अगर रिविट की फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसकी आर्किटेक्चर फाइल नहीं दिखती, तो माइट भी पॉसिबिलिटी रहता ही है कि वो आपको अनलोड हो गया हुआ। तो आप पीबी में आइए, यहाँ पे रिविट लिंक देखिए, राइट क्लिक, रीलोड फ्रॉम, और अदरवाइज यू कैन गो टू मैनेज टैब, प्रोजेक्ट मैनेज, मैनेज प्रोजेक्ट, मैनेज लिंक, रिविट। यहाँ देखिए इसकी जो आर्किटेक्चर फाइल है वो अनलोड हो गई, सेलेक्ट कीजिए, रीलोड फ्रॉम, वेर इज दैट ऑन द डेस्कटॉप, सेलेक्ट एज एस एचवीएससी सॉरी केजी प्रोजेक्ट, ओपन। ओके, तो देखिए आर्किटेक्चर फाइल वापस आ गई। मैं 3D में जा रहा हूँ। आई नीड टू export it to the NWC. For that, our application menu, export NWC.
मैं यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ विद द नेम HVAC फाइनल, सेव इट। तो दैट मीन एक्सपोर्टेड। लेट्स सी, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। दूसरी विंडो में ओपन हो गया। दैट्स ओके। सी नाउ HVAC फाइल। अब आपको नहीं मालूम कि ये क्या है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे बताता है वो क्या है, वो मैकेनिकल इक्विपमेंट। अगर उसकी नेम दिया होगा प्रॉपर तो नेम भी आएगा, रूफ पे प्लेसमेंट है वो, सेलेक्ट इट, इट इज ऑल्सो मैकेनिकल इक्विपमेंट। इसको नेम को हाइड करें, यहाँ देखिए, सम मैकेनिकल इक्विपमेंट लाइक दैट। इट इज व्हाट, इट इज अ डक्ट इंसुलेशन, क्योंकि इंसुलेशन के अंदर क्या है, डक्ट है। तो आप इंसुलेशन को हाइड कर दीजिए, यू विल सिट द डक्ट। इट इज अ रेक्टेंगुलर डक्ट, अनहाइड ऑल, दैट्स फाइन। यस। अब इसमें एक चीज, जैसे एग्जांपल, मैं क्या कर रहा हूँ, एक चिलर ले रहा हूँ, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। इस पे अपन लिंक ऐड कर सकते हैं, कैसा, select the equipment, right click, here we having the option link, add link, नेम देंगे एज ए चिल्ड्रन। यहाँ पे यूआरएल पे हिट करेंगे, और आप यहाँ पे कोई भी इमेज या कोई भी फाइल अटैच कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे इमेज अटैच करना है, आई विल टेक एज ए ऑल फाइल, save that image of children we have saved just now, children, open, hyperlink, ओके। लिंक हो गई ये पे, बट दिख नहीं रहा, रीजन ये है, यहाँ देखिए होम टीम है, आपको ये लिंक जो है एक्टिव नहीं है। अभी जस्ट पे हिट कीजिए, देखिए अब लिंक दिखेगा। यहाँ देखिए, अब माउस लेके यहाँ पे जो लिंक पे बता रहा है ये चिल्लर का लिंक है। अगर आपने इस पे हिट करा तो वो जो इमेज जहाँ पे है ना, वहाँ से ओपन हो जाती है। तो मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा है कि अगर सपोज के पहचान में आ रहा है कि क्या है ये, तो आप उस पर लिंक ऐड करके बता सकते हैं। जब कोई भी इस पे हिट करेंगे, या बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन लिंक अटैच कर दीजिए। ओके, हिट करेंगे इस पे, ये ओपन हो जाता है। ओके, इट इज अ वे। अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो जस्ट राइट क्लिक, एडिट इट, सेलेक्ट द लिंक, रिमूव, डिलीट इट, या एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, डिलीट। ओके, दैट्स डन। नेक्स्ट इज हियर, at last finally we have reached to the word class detective tool। तो क्लास डिटेक्टिव मीन्स डिफरेंट द बिटवीन द डिफरेंट सर्विसेज। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे पास HVAC फाइल है, मैं इसमें ऑल भी अदर फाइल अटैच कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग एंड एवरीथिंग। तो ये फाइल अटैच कैसा होगा, यस, हाउ विल यू अटैच दैट फाइल टू द लिंक Revit, insert tab, link Revit, I need to attach here any one like a plumbing first, open, that plumbing file be attached, okay, no issue. Again link Revit, I like to go for electrical, open, जस्ट इसको चेक कर दीजिए, दोबारा मैसेज ना डिस्प्ले नहीं होता, क्लोज। अगेन लिंक Revit एज ए फायर फाइटिंग, ओपन। तो आपको बताएंगे यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स, फायर फाइटिंग। तो एक इलेक्ट्रिकल आ गई, फायर फाइटिंग आ गई, आर्किटेक्चर आ गया, प्लम्बिंग आ गया, और HVAC तो करंट है ही है इसका। इन सबको मुझे एक्सपोर्ट करना है NWC फाइल में। ओके, सो दैट्स फाइन। तो आई विल गो फॉर योर आर एप्लीकेशन मेन्यू,
या पहले इसको सेव कर लेंगे। our application menu, save as project, here only I will save with the name as a coordination. Save it. Then I will export it to the NWC. Our application menu, export NWC, here only, save it. That file been exported. Now you can see we having coordination NWC file, open it. So you got this, everything. सब यहाँ पे सारे सर्विसेज हैं। अगर मुझे सेक्शनिंग करना है, ऊपर से देखना है, तो अगेन रिव्यू, सॉरी व्यू पॉइंट, इनेबल सेक्शनिंग, फिट, मूव। ओके, मुझे टॉप चाहिए तो इसी प्लेन को सिलेक्ट रहने दीजिए। Go to here, align to the surface. I want to align to the top. So just go down and see all the services above the ceiling. See how beautiful and easy it is to that navigate it. इतनी बड़ी फाइल को अगर आप Revit में navigate करेंगे, it will take more time to reload, load. यहाँ पे देखिए कितना easily आप रिव्यू कर सकते हैं, है ना? Like this way. Now I just want to off this. Next, अपने को यहाँ पे सारे सर्विसेज है एक साथ। अब मुझे क्लैशेस चेक करना है सबके एक दूसरे के बीच में। रिविट में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग के बीच में, मींस लिंक टू लिंक रिविट के बीच में आप क्लैशेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, वी हैव सीन दैट लिमिटेशन इन द रिविट। वी कैन ओनली फाइंड आउट द क्लैशेस बिटवीन करंट टू करंट प्रोजेक्ट, करंट टू लिंक प्रोजेक्ट, बट लिंक टू लिंक प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते। फॉर दैट वी नीड टू कम टू हियर इन दिस Navisworks. After getting the coordination file, now we need to check the clashes. तो for it क्या करना है आपको? Come to the right hand side, left hand side, sorry, क्लास डिटेक्टिव टूल्स। जस्ट इसको पिन कर दीजिए ताकि ये आप बार हिट करने के बाद वो अंदर नहीं जाएंगे। इसको पिन कर देंगे तो यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे वो इस तरह। यू कैन रिव्यू हियर। ये लिंक्स अब दिख रहे हैं, मुझे इसको ऑफ करना है, जस्ट हिट ऑन द लिंक्स, बस फाइन। नेक्स्ट आफ्टर दिस हिट ऑन द ऐड टेस्ट। टेस्ट का नाम दीजिए। आई एम गिविंग हियर like I can give the name FF firefighting versus all, firefighting versus all, या HVAC वर्सेस ऑल, कुछ भी करेक्ट नाम दे दीजिए। हिट आउटसेट या इंटर, ये टेस्ट का नाम आ गया।
नेक्स्ट कम टू हियर, कोऑर्डिनेशन, दो, क्योंकि फाइल तो एक ही है कोऑर्डिनेशन। अब इसमें कोऑर्डिनेशन को ओपन कीजिए, और इस कोऑर्डिनेशन फाइल में जो रिसेंट फाइल है वो क्या है आपका, HVAC है। इस लिस्ट में HVAC का नाम नहीं आता, क्योंकि HVAC क्या करंट फाइल है उसका। तो करंट फाइल आपको वो कहाँ मिलेगा, रूफ लेवल, रूफ। बट मुझे सिलेक्शन करना है किसके बीच में, FF एंड ऑल। ये साइड में सिर्फ आप फायर फाइटिंग को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट कर लिया, फिर राइट हैंड साइड में आइए। ये जो सेकेंड फ्लोर आप कंट्रोल पकड़ के रखिए, सेकेंड फ्लोर रूफ फ्लोर, ये किसके, HVAC का आपको। इसके अलावा मुझे आपको चेक करना है द क्लैशेस बिटवीन, मतलब आर्किटेक्चर फाइल में नहीं, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। इवन अगर फायर फाइटिंग के बीच में भी है तो, मतलब हो सकता है ना आपको स्प्रिंकलर या पाइप आपको क्लैश कर रहा है, दैट वन। तो बिटवीन FF एंड ऑल वी हैव डूइंग दैट। आफ्टर सेलेक्टिंग, कम टू हियर, टाइप यहाँ पर रखना है एज ए हार्ड, टॉलरेंस 0, मतलब जरा सा भी अगर टच हो रहा तो भी आपको ये बताना है कि क्लैशेस यहाँ पे है। नहीं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं 0.01 फीट अगर क्लैश हो रहा, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं 0.01। तो मैं कहीं पे भी अगर 0.01 फीट के अंदर अगर रहेगा क्लैशेस, तो उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे। नहीं, मुझे पूरे डिटेक्ट करना है, 0 भी करना है। लिंक नन, दैट्स इट। ओके, ये करने के बाद आपको करना ये है, यहाँ पे जस्ट हिट ऑन द run test. Hit on the run test. When you hit on the run test, see this much number, कितने क्लैशेस सारे देखिए आप यहाँ पे खुद, 582 क्लैशेस है, देख रहे हैं, टोटल 582। क्लैश 2, क्लैश 3, कहाँ कहाँ पे क्लैशेस वो बता रहा है। आप इसको ड्रैग कीजिए इस तरफ, डिस्प्ले यहाँ बाहर आ जाएगा। क्लैश 5, इस तरह जितने सारे क्लैशेस है वो सब नजर आएंगे आपको। अभी आप देखना चाह रहे हैं क्लैशेस एग्जैक्टली कहाँ पे है, क्योंकि अपन तो हाइड कर दिया ना यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ये दे रहा है कि डिम अदर्स, इस पे हिट कर दीजिए, वो चले जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक्शनिंग। तो व्यू, इनेबल सेक्शनिंग, टॉप व्यू, एग्जैक्टली कहाँ पे वो बताएंगा फिर। लाइक डिम अदर हटा दिया मैं, ये यहाँ पे बता रहा है डिम अदर, मतलब यहाँ पे आपको मिल गया वो। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप ये देख लिए, ओके ये यहाँ पे क्लैश हो रही, ओके इट इज क्लैशिंग हियर, लाइट एंड। तो सेक्शनिंग को और नीचे कर सकते हैं अपन, ताकि स्प्रिंकलर और लाइट दिखेगा। ये पॉइंट है जहाँ पे आपको क्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे क्लैश रिमूव करके नहीं करना है कुछ भी। सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क इशू। सो लाइक दैट, अगर ये डिम, डिम अदर कर दिए तो वो बैक साइड जितने रहते हैं सब चले जाते हैं, और ऑन कर दिए तो वो आपको दिखते हैं। आपको यहाँ पे क्लैश दिखने के बाद यहाँ से रिमूव नहीं होंगी, वापस आपको आना पड़ेगा रेविट में। आपको जगह मालूम चलेगा रेविट में कहाँ पे है वो। अब मैनुअली जाइए और वहाँ पे जाके आप क्या कीजिए, क्लैशेस रिमूव कीजिए, सिंपल। ओके, तो अगर मुझे 3D में यहाँ पे दिख रहा है तो सेक्शन बॉक्स को ऑन कर दीजिए। सेक्शन बॉक्स को ऑन करके आप सेक्शन को डाउन कर दीजिए, फाइन, एज ए शेडेड व्यू। ओके,
यहाँ पे आके मैनुअली आपको जैसे पता है करते हैं वैसा कीजिए। तो लाइक दिस वे यू कैन गेट द वर्ड डिफरेंट क्लैशेस। अब अपन को क्या करना है क्या है यहाँ से, तब ये जो है एक थोड़ा सा हेटिक वॉक है। अब यहाँ पे देखना और फिर आके यहाँ पे रेविट में मुझे चेक करना किधर वो क्लैशेस है, कभी कभी नहीं मिलता वो। इसके लिए जुगाड़ है, दैट इज अ डायनामो। ओके, दैट इज अवर डायनामो। तो डायनामो को क्या करना है, आपको यहाँ से रिपोर्ट को उसको अटैच कर देना है। कैसा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपोर्ट दिस रिजल्ट। उसके लिए यहाँ देखिए, रिजल्ट के बाजू में रिपोर्ट है, जाइए यहाँ पे। बहुत सारे कुछ दिखा रहे हैं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे क्लैश पॉइंट चाहिए, ये डेट असाइन टू डेट अप्रूव, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। आइटम आईडी रहने देंगे, डिस्टेंस, डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, प्रॉपर्टी, इमेजेस रहने देंगे, क्लैश ग्रुप ये रहने देंगे, ग्रिड्स, ये सब नहीं चाहिए। न्यू, एक्टिव, रिव्यूड, अप्रूव, रिजॉल्व, कुछ नहीं, न्यू। ओके, ये सारे पॉइंट को चेक करके रखेंगे। करंट टेस्ट जो भी करे, और यहाँ पे जो रिजल्ट रखेंगे दैट इज XML, hit on the right report. Here only I will save this XML file, FF versus all. सेव कर ली। ओके, बस ये नाविसवा का काम खत्म हो गया। मुझे जस्ट वो रिपोर्ट चाहिए। अब उस रिपोर्ट के साथ क्या करना है आपको, सिंपल, यू नीड टू ओपन द ब्लैंक एक्सेल शीट, एक्सेल। ओके, गो टू द एक्सेल बुक, फाइल, ओपन, ब्राउज। अपन डेस्कटॉप पे फाइल सेव करे हुए, द नेम एज ए व्हाट, 18 somewhere here, coordination, FF versus all, ओपन कर लीजिए। यूज एन XML टेबल, ओके, ये जरूरत नहीं है, ओके, ये सारे आ गए। ओके, ये देखिए यूनिट भी दिखा रहा है आपको, फिट में सारे यूनिट। इसमें से मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इस कोऑर्डिनेट के, XY वगैरह, इसकी मुझे जरूरत है। ओके, दैट इज टोटल हाउ मच, 583 सम। आपको करना ही है यहाँ से, ये XYZ कोऑर्डिनेट को पूरे को सेलेक्ट कर लेना है कंप्लीट, जितनी भी क्लैशेस आ रही है आपको, ये लास्ट यहाँ तक। अब इसमें कुछ रिपीटेशन भी हो सकता है, जैसे इंसुलेशन टू डक्ट, डक्ट टू इंसुलेशन, इस तरह, मसला नहीं है। सेलेक्ट कीजिए, Control C, देन एक न्यू शीट ओपन कर लीजिए। इसमें स्टार्टिंग कॉर्नर से जाकर पेस्ट कर दीजिए उसको, जस्ट ये शीट को सेव कर दीजिए एज अ सेव एज, सेम प्लेस यू कैन सेव द डेस्कटॉप टीम, नेम एज ए दैट क्लैश रिपोर्ट, सेट, दैट्स, बाकी सबको क्लोज कर सकते हैं। इसी क्लैश रिपोर्ट को यूज करके आप क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसको डायनमो के साथ अटैच करेंगे, और डायनमो क्या करेंगे, आपको रेविट में उस कोऑर्डिनेट पे कहाँ कहाँ पे क्लैशेस है वो पिन करके बता देता है यहाँ पे कि ओके इस पॉइंट पे आप क्या क्लैश हो रहे, तो वो इजी रहता है आपको क्लैश रिमूवल के लिए। ओके, so just today we'll stop here. Inshallah in the next class we'll see this that dynamo as well as the print layout, ये print कैसा निकालना है। Okay, and that's it. Inshallah in the next class we'll see that. Okay, goodbye.
अल्लाह हाफिज।